Good afternoon, friends. Myself Ramesh Shingade. I welcome you all on UPSC Guide platform. I hope everyone knows that and everyone tells about it that prelims is around the corner. आखिरी के 7 दिन बचे हैं prelims को, and obviously most of you, those who are giving the attempt very sincerely and seriously, they might be very panic at this moment, and it is very obvious. First of all, always understand that this is very we can say general thing, or this is very common thing that you are panic nowadays, because obviously you have given a lot of time and efforts to this exam. Okay, so please make sure that whatever you are feeling right now is not unique, और सिर्फ आप वैसा फील नहीं कर रहे हो. Every single aspirant is feeling almost the same, especially those who have prepared this exam very sincerely. They are very panic right now, they are very tense. Some of the times you might be feel demotivated. बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि मेरा नहीं होगा and all those things, but trust me, this is happening with everyone. Even those people who have already cleared this exam, or they have like cleared the prelims and write mains and interviews, so even they feel the same. I am telling you because of my own experience. I have given 5 mains and 7 times I have cleared this GS cutoff, but still every single time there was a butterflies in my stomach when these last 7 days was there. So please make sure that this session is specifically for that. I won't take you a lot of time. Obviously, I know that every single moment is like gold for now next 7 days. So I'll start without wasting any time. I'll start with one important quote that you need to understand. चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा. Okay, so please make sure that this prelims is or entire UPSC process itself is like a कर्म योग. ओके, सो भगवद्गीतेत आपल्याला सांगितलेलं आहे कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि भाई कर्म करते रहो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट कैन सेव यू इन नेक्स्ट 7 days. ट्रस्ट मी ऑन दिस. सो लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज क्लास. First, let me introduce briefly for myself. 5 mains and 3 interviews in civil services. I won't go into that much of detail, and 10 years of experience, and that's why I'm telling you what to do and what not to do in next 7 days. सबसे पहले अजेंडा ऑफ द डे क्या है, मैं 10 मिनट का लेक्चर बनाने वाला हूं. सो क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट मिनट रिवीजन. पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, शेड्यूल कैसा होना चाहिए, मेंटेनिंग काम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस. डी डे जो आखिरी 25 तारीख को एग्जाम होगा एक्चुअली, तब कैसे टैकल करना है. सीसैट के बारे में 1 मिनट बात करूंगा, एंड टेम्परामेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स विल डिस्कस शॉर्टली. सबसे इंपॉर्टेंट एलएमआर लास्ट मिनट रिवीजन. देखो दोस्तों, कुछ नहीं नया पढ़ना है, जो पढ़ना था पढ़ चुके हैं. ओके, सो नाउ दिस इज अ टाइम फॉर जस्ट ग्लांसिंग थ्रू द पेजेस, that too only for self satisfaction. Okay, so this is last minute revision. अब यहां पे क्या करना है, 7 days and 7 subjects. So every subject 1 day 1 subject. पहले तो ये समझ लीजिए. दूसरा, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सॉल्व करने की नहीं करने. माय पर्सनल सजेशन, इनफ इज इनफ नाउ. अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो गो फॉर पीवाईक्यूज रेदर देन एनी इंस्टीट्यूट टेस्ट, क्योंकि इंस्टीट्यूट टेस्ट से कोई बेनिफिट नहीं होगा. अभी आगे से, इससे आगे आप जो भी पीवाईक्यूज देखोगे, ट्राई टू गेट एक्लेमेटाइज विथ यूपीएससी लैंग्वेज. यूपीएससी अपने क्वेश्चंस में ही आपको आंसर के हिंट देता है. कई बार ऐसा होता है कि किसी और क्वेश्चन में दूसरे किसी क्वेश्चन का हिंट छुपा होता है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड एलिमिनेशन टेक्निक, किस तरह से आप जो कीवर्ड्स होते हैं, ओनली, एक्सक्लूसिवली, इनॉर्मसली, ठीक है, ये जो कीवर्ड्स होते हैं, एनी, तो उनको देख के आपको यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो पीवाईक्यू जो है, एवरी डे टेक 1 पेपर, गो रिवर्स ऑर्डर. 2024 का देखिए, आज कल 23 का, परसों 22 का, ऐसे करते करते लैंग्वेज को समझिए. यूपीएससी शेड्यूल क्या होना चाहिए आखिरी 7 दिनों में, कैसे रिवीजन करना है, ठीक है. सो ये सब चीजें बात करेंगे. पहला है कि आज के दिन क्या कर सकते हैं. डे वाइज प्लान हम देखेंगे थोड़ा सा. पर्सनल सजेशन है, अगेन यू कैन चेंज एज पर योर नीड,
ठीक है, स्वादानुसार आप इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक का प्रिपरेशन लेवल, एक्सपीरियंस बहुत कुछ अलग अलग होगा। इवन देयर माइट बी सम एस्पिरेंट जो ऑलरेडी 3-4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, सो उनकी जरूरत अलग होगी। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू कैन चेंज एज पर योर नीड एंड टाइम। सो प्लीज मेक श्योर दैट नॉर्मली आई सजेस्ट कंसेप्चुअल सब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे कि इकोनॉमी है, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, सो ये थोड़े पहले करेंगे तो अच्छा होगा। फैक्चुअल सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, इनको थोड़ा बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि 25 तारीख को अगर एग्जाम है, अगर आप हिस्ट्री और पॉलिटी के कुछ फैक्ट्स 23-24 को पढ़ के जाते हो तो वेरी हाई चांसेस दैट यू विल रिकलेक्ट देम। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, पॉलिटी में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं को हमें पढ़ना है, तो जितना उसको लास्ट में रखेंगे उतना कम पैनिक में हम कम समय में पॉलिटी पूरा खत्म कर सकते हैं। ज्योग्राफी, एनवायरमेंट को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ज्योग्राफी वास्ट सिलेबस है, एनवायरमेंट थोड़ा सा टेक्निकल नेचर का है, ठीक है। सो पर्सनल सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है कि इकोनॉमी, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट ये थोड़ा पहले रखेंगे, आज इमीडिएटली करेंगे इनको फिनिश, एंड जो हिस्ट्री पॉलिटी है वो थोड़ा बाद में जब एग्जाम नजदीक होगा। सो पहले दिन आप क्या कर सकते हो, इकोनॉमी के जो बेसिक कंसेप्ट है लाइक इन्फ्लेशन, बैंकिंग, बजट जो इस साल का है, टैक्सेशन सिस्टम, उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स हो गए, इसमें स्पेशली जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स है जीएमटी, उसको थोड़ा सा डिटेल में देख के जाइए, चांसेस आर देयर। देन मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा क्वेश्चन आता है, फिजिकल पॉलिसी 1 or 2 क्वेश्चन एवरी ईयर, इसमें स्पेसिफिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं ये देख लीजिए थोड़ा सा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल सेक्टर, पिछले कुछ सालों में यही सारे टॉपिक्स है जिन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो प्लीज मेक श्योर दैट ये जो 7 पिलर्स है वो अच्छे से कर लीजिए, हर एक में से आपको 100% क्वेश्चन आएगा। एंड किससे रिवाइज करना है, तो ऑब्वियसली इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि आपने नोट्स बनाए होंगे, एंड जो इकोनॉमिक सर्वे है वो भी थोड़ा देख लीजिए। तो दीज आर द टॉपिक्स इकोनॉमी के, पहले तो इनको खत्म कीजिए, बाकी जो टॉपिक्स है जो कम इंपॉर्टेंट है वो बाद में टाइम मिले तो कर लेना। एंड प्लीज डेप्थ में नहीं जाना है, ओके, ऑलरेडी जितना डेप्थ में जाना था आप जा चुके हो, नाउ यू जस्ट ग्लांस थ्रू द पेजेस, दैट इज व्हाट वी नीड नाउ। एक कोई भी पीवाईक्यू का पेपर जैसे आज उठा लिया 2024 का पेपर, तो उसको थोड़ा एनालिसिस कीजिए, उसकी लैंग्वेज को समझिए, आंसर को देखिए, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं पीवाईक्यू से, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। जिनका सीसैट स्ट्रॉन्ग है, नॉट नेसेसरी टू डू एनीथिंग नाउ, अगर आपको लगता है कि वीक या एवरेज है, थोड़ा सा 1 घंटा सीसैट को दीजिए, कुछ बेसिक क्वांट्स के फॉर्मूले या डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। देखो सीसैट अभी हर एक का अलग अलग लेवल होता है। इफ यू आर कंफर्टेबल कि नहीं भाई सीसैट तो मेरा आराम से क्लियर होगा, देन डोंट डू फॉर दैट। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई सीसैट मेन हेडेक सीसैट ही है, जीएस तो निकल जाएगा, तो थोड़ा सीसैट को भी टाइम दीजिए, प्लीज डोंट इग्नोर इट। ओके, 23 में क्या हुआ था सबको पता है सीसैट की वजह से। So this is one day. Second day you can do the geography and revision, environment. So geography again personally I will suggest थोड़ा सा 2 NCERT देख लीजिए, कौन सा, फंडामेंटल फिजिकल एंड इंडिया फिजिकल। उसमें भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज आपने किए होंगे, आपको पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से। सो इंडियन ज्योग्राफी पे थोड़ा रिवर्स या जो सेकेंड चैप्टर है वो थोड़ा देख लीजिए अच्छे से, क्या क्या करना है ज्योग्राफी में। इंडियन ज्योग्राफी थोड़ा ज्यादा वेटेज आता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट मैपिंग है, मैपिंग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि आपने पिछले 1 साल में जो जो न्यूज में प्लेसेस होंगे वो देख लीजिए थोड़ा सा, अगर नहीं देखे तो कोई एक फटक से यूट्यूब वीडियो को 2 की स्पीड पे देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज। देन क्लाइमेटिक पैटर्न्स, क्लाइमेटोलॉजी, सॉइल, रिवर्स, ये तो थोड़ा बेसिक बेसिक देख लीजिए ऊपर से। मैपिंग बहुत ज्यादा आता है ज्योग्राफी में, पिछले 2-4 सालों में देखो मैपिंग के क्वेश्चन और असर्शन रीजन के क्वेश्चन, ठीक है। सो ये 2 चीजें अच्छे से करना। आई एम एक्सपेक्टिंग कि असर्शन रीजन के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा आएंगे, एंड 3 पेयर मैट्रिक्स वाले जो क्वेश्चन है वो भी थोड़े से बढ़ेंगे, नॉट इन दिस सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट में ये थोड़ा ज्यादा आएगा। दिस इज माय पर्सनल प्रेडिक्शन, एंड अभी तक जितने प्रेडिक्शन किए सारे सही निकले। सो आई एम होपिंग। एनवायरमेंट में क्या क्या करना है, स्पीसीज इंपॉर्टेंट, देन करंट अफेयर, मेजर फोकस जो होता है करंट अफेयर पे होता है। प्रोटेक्टेड एरियाज, अभी लास्ट के 2-3 सालों में देखो प्रोटेक्टेड एरियाज पे क्वेश्चन कम हुए थे, तो सडनली सरप्राइजिंगली दिस ईयर इट माइट बी राइज। आई एम होपिंग सो, लेट्स सी व्हाट यूपीएससी डज, ठीक है।
अगेन इंटरनेशनल कन्वेंशन थोड़े देख लीजिए न्यूज में जो होंगे बेसिक्स। सीसैट कंटिन्यू कीजिए थोड़ा सा। अगर आज आपने क्वांट किया है तो कल थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग देखिए, ऐसा थोड़ा थोड़ा डेली का 1-2 घंटा कर सकते हो, ज्यादा नहीं करना है। ओके, सो ये 3 दिन हो गए। देन कम्स योर फोर्थ डे, साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में मेजर फोकस जो है आपका स्पेस पे होना चाहिए, स्पेस टेक्नोलॉजी। अब देखो पाकिस्तान इंडिया का वॉर हुआ है तो डिफेंस सेक्टर बिकम इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो S-400। अब आई एम नॉट श्योर कि यूपीएससी ने अगर पेपर पहले प्रिंट किए होंगे तो ऑब्वियसली इट माइट नॉट बी देयर, बट सी इट्स यूपीएससी, वी नेवर नो दैट। S-400 थोड़ा मिसाइल सिस्टम, ड्रोन्स एंड ड्रोन डिफेंस सिस्टम, ये देख लीजिए थोड़ा सा इंडिया का कौन कौन सा है। ओके, सो डिफेंस सेक्टर, स्पेस, एंड थर्ड इज न्यूक्लियर, क्योंकि न्यूक्लियर भी न्यूज में था। एंड थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, बेसिक कंसेप्ट देख लीजिए। करंट अफेयर कर सकते हो आप डे 4, क्योंकि साइंस एंड टेक तो इतना लेंदी नहीं होता है, आपको बेसिक बेसिक करना है। और एक मैं हिंट देता हूं आपको, अभी देखो ट्रिक है, आई एम नॉट श्योर कि हर टाइम वर्क करेगी कि नहीं, बट मैक्सिमम केसेस में करती है। अगर साइंस एंड टेक का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो मैक्सिमम चांसेस है ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर। ओके, अगेन डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अपने जिम्मेदारी पे इसको यूज करना है। अगर आपको किसी टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस पूछे गए हैं, ठीक है, या अगर एनवायरमेंट में आपको किसी का पोल्यूटेंट्स का कोई इंपैक्ट पूछा गया है, तो चांसेस आर देयर मैक्सिमम टाइम्स ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। करंट अफेयर ऑब्वियसली लास्ट 1 ईयर। अभी बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर 2-3 सालों से पुराने करंट अफेयर भी पूछते, एक आधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए पूरे साल का करंट अफेयर करना आई डोंट थिंक अभी के 7 दिनों में नेसेसरी है, ठीक है। उससे बेहतर है पॉलिटी हिस्ट्री को ज्यादा टाइम दीजिए। सो पर्सनली आई विल सजेस्ट, अगर पहले किया होगा तो रिवाइज कर सकते हो, अदरवाइज 1 ईयर फोकस रखिए। अगेन एक पीवाईक्यू पेपर और थोड़ा सा सीसैट रिवीजन कर सकते हो, फॉर्मूलाज वगैरह। सो ये हो गए चौथा दिन, जैसे अभी ये 21 तारीख को आएगा ये सब आपका। डे 5th इट विल टेक योर टाइम, एग्जॉस्टिव डे रहने वाला है, क्योंकि हिस्ट्री, पूरा हिस्ट्री एक दिन में आपको खत्म करना है। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस करने की जरूरत नहीं है। अगेन पर्सनली आई विल सजेस्ट कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है, जैसे एंशिएंट है, बुद्धिज्म जैनिज्म कीजिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे कि इंस्क्रिप्शंस होते हैं या फॉरेन ट्रेवलर्स, आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन ऑन ट्रेवलर्स दिस ईयर, आइदर फ्रॉम एंशिएंट और फ्रॉम मेडिवल। सो ट्रेवलर्स पे थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम मेडिवल में देखो सूफी संत, भक्ति मूवमेंट पे थोड़ा देख लीजिए मेडिवल में। दिल्ली सल्तनत, एडमिनिस्ट्रेशन, देखो मेडिवल में अगर आपको मेजर फोकस देना है तो दो चीजों पे, अलग अलग जो टर्म्स होते हैं, ठीक है, टर्म्स की डायरी आपने मेंटेन की होगी तो वेल एंड गुड, नहीं तो गूगल पे कीजिए, मिल जाएंगे टर्म्स बहुत सारे। सो टर्म्स एंड देयर मीनिंग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो दिल्ली सल्तनत का हो या मुगलों का हो, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से करके जाना। ओके, सो प्लीज मेक श्योर दैट ये सब चीजें। आर्ट एंड कल्चर, देखो पर्सनली बहुत बच्चे होते हैं कि सर हमें एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर बहुत ही डिफिकल्ट जाता है। सो पर्सनली आई विल रेकमेंड फॉर दोज स्टूडेंट्स कि एंशिएंट मेडिवल भले आप थोड़ा सा स्किप कर लो तो भी चलेगा, लेकिन आर्ट एंड कल्चर बहुत अच्छे से करना। एटलीस्ट गो थ्रू इमेजेस, अलग अलग टेम्पल्स होते हैं या फिर अलग अलग स्कल्पचर टाइल्स, डांसेस, इमेजेस देख लो सिंघानिया बुक में जाके, तो आपको पता चलेगा। एंड प्लीज मेक श्योर दैट अगर आपने लेटेस्ट एडिशन लिया है सिंघानिया का, तो हर चैप्टर के बाद एक मैप दिया हुआ है, तो प्लीज वो मैप भी अगर आप ढंग से करके जाओगे, यू विल गेट गुड मार्क्स, दैट इज माई गारंटी, ठीक है। सो ये थोड़ा सा कर लीजिए, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आर्किटेक्चर, इसी पे क्वेश्चन आते हैं बार बार, तो फिर भी बच्चे पता नहीं क्यों नहीं कर पाते। मॉडर्न हिस्ट्री, अगेन लास्ट ईयर मॉडर्न हिस्ट्री बहुत कम क्वेश्चन आए थे, बच्चे एकदम सरप्राइज हो गए थे, बट दिस टाइम एटलीस्ट एवरेज क्वेश्चन विल बी देयर, दिस इज माय प्रेडिक्शन। सो मॉडर्न थोड़ा ढंग से कीजिए। गांधीयन फेज जो है 1905 से लेके 1947 तक हर साल क्वेश्चन आ रहा है। एंड ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट पहले नहीं पूछते थे, अब पूछ रहे हैं, जो अर्लियर वाला फेज है, तो दो ये फेजेस है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिए इनको। लास्ट डे जितने भी सब्जेक्ट हमने करने थे कर लिए। पॉलिटी में कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, ड्यूटीज,
अमेंडमेंट का चैप्टर है, पार्लियामेंट का चैप्टर, पार्लियामेंट पे तो 2-3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं स्पीकर वगैरह पे, ठीक है। सो ये सिलेक्टिव टॉपिक्स करने हैं। प्लीज मेक श्योर दैट आप ऐसा मत करना कि सर मैं 92 चैप्टर है, इम्पॉसिबल है, यू कैनॉट डू देम ऑल इन लास्ट 7 days और इन 1 day, ठीक है। सो 4-5 घंटे में पॉलिटी आपका पूरा रिवाइज होना चाहिए। तो सिलेक्टेड टॉपिक्स जो है उनको पहले खत्म कीजिए। अगर आपके पास टाइम एनर्जी बचता है, यू कैन गो फॉर अनदर चैप्टर्स, ओके। अगेन उसके साथ साथ आपको एक पीवाईक्यू पेपर करना है। एंड लास्ट का जो दिन रहेगा, आई विल सजेस्ट जो कॉम्प्रीहेंशन है सीसैट का, उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, जैसे कि आपको अलग अलग जो टेल एंडर्स होते हैं, जस्टिफाई, आइडेंटिफाई, ये सब चीजें जो है वो उसका मीनिंग समझ लीजिए। क्रक्स ऑफ द पैसेज कैसे फाइंड किया जाता है, अजम्पशंस कैसे निकाले जाते हैं, तो उसका एक पीडीएफ आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, ठीक है। हमारे जो चैनल है टेलीग्राम और यूट्यूब का, उस पर भी हम डाल देंगे, सो यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्रीहेंशन पे आखिरी दिन जो वर्ड्स होते हैं उनको देख लीजिए, ओके। सो दिस इज ऑल हाउ यू कैन डू दैट। आखिरी दिन जो होगा एकदम 24 तारीख को, 25 को एग्जाम है, 24 को आपको क्या करना है, थोड़ा लाइट रखिए। जितना पढ़ना था आप पढ़ लिया है। अगर आप पढ़ सकते हो और पैनिक फ्री तो पढ़ लीजिए। अगर नहीं हो रही पढ़ाई, ज्यादा टेंशन आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, जस्ट क्लोज योर बुक्स, काम डाउन, ठीक है। जितना पढ़ा था उतना याद करने की कोशिश कीजिए। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि डिफरेंट एक्ट्स है गवर्नमेंट के, बॉडीज होती है, या मैप्स। मैप्स तो मैं बोलूंगा अगर लास्ट में कुछ नहीं हो रहा है तो सीधा एटलास उठा के बैठिए और मैपिंग देखते रहिए। और स्पेक्ट्रम के जो लास्ट के पेजेस होते हैं, देखो मैं क्या करता था एग्जाम के एक दिन पहले, स्पेक्ट्रम के आखिरी पेजेस में बहुत सारे टेबल्स होते हैं, हर चैप्टर के बाद एक समरी पेजेस होते हैं स्पेक्ट्रम के, समरी पढ़ो, ठीक है। हिस्ट्री का समरी जो है वो पढ़िए। देन जितने भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज है उनके आखिरी में एक ग्लॉसरी होती है। जब एनसीईआरटी खत्म होता है, जैसे ज्योग्राफी का हो या आर्ट एंड कल्चर का हो, तो उसके पीछे टर्म्स एंड उनके मीनिंग दिए होते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें जो है ना वो लास्ट के दिन में करना। एंड ट्रस्ट मी, यहां से आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। एटलास, स्पेक्ट्रम के आखिरी पेजेस, समरी पेजेस हिस्ट्री के हर चैप्टर के बाद जो होते हैं, एंड ऑब्वियसली एनसीईआरटी के पीछे जो ग्लॉसरी पेजेस होते हैं। एंड अगर आपने कुछ डायरी वगैरह मेंटेन की होगी टर्म्स की, जैसे एनवायरमेंट के टर्म्स, इकोनॉमिक्स के टर्म्स, हिस्ट्री के, आर्ट एंड कल्चर एंड एंशिएंट मिडिवल के जो टर्म्स होते हैं, सो ये टर्म्स थोड़े देख लेना। बहुत क्वेश्चन, कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, दिस टर्म्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, ठीक है। सो ये थोड़ा सा लास्ट के आखिरी दिन में देख लेना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट के दिन देयर इज नो नीड टू सॉल्व एनी पीवाईक्यूज, कुछ करने की जरूरत नहीं है, नो टेस्ट। स्लीप अर्ली, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो अभी ये बोलना तो बहुत आसान है कि जल्दी से सो जाओ, नींद नहीं आती है, ट्रस्ट मी, मुझे भी नहीं आती थी, बट एटलीस्ट पढ़े रहो, शांति से सोचो। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, व्हाट आई यूज्ड टू डू, जो लोग यूपीएससी नहीं कर रहे ऐसे दोस्तों को कॉल कीजिए, थोड़ा उनके साथ यूपीएससी छोड़ के बाकी बातें कीजिए, ओके। इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन लिसन गुड म्यूजिक, काम म्यूजिक, तिबेटियन हीलिंग म्यूजिक जो होता है वो सुन लीजिए, ओके। सो ये सब चीजें आप करोगे, ठंडा रखने की कोशिश कीजिए। लास्ट 7 days में प्लीज मेक श्योर दैट डेली कम से कम 10 to 15 मिनट्स मेडिटेट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोंट डू एनीथिंग, क्लोज योर आईज, सिट्स ऑन द योर टेबल और चेयर, एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू मेडिटेट फॉर कम से कम 10 to 15 मिनट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल नॉट रियलाइज इट्स इंपॉर्टेंस अनलेस यू डू इट। कुछ जनरल टिप्स है, ऑलरेडी आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब बस रिवाइज कीजिए, कुछ भी नया मत पढ़िए। किसी ने कुछ भी बोल दिया, मैं भाई अगर आपको बोलूं कि भाई यूपीएससी का पेपर लीक हुआ है, मेरे हाथ में पेपर है, पढ़ लीजिए, डोंट डू दैट, ओके। पहली चीज तो लीक नहीं होता है, ठीक है। अवॉइड न्यू टॉपिक्स एट एनी कॉस्ट। इतना बताने के बावजूद भी बच्चे पढ़ते हैं, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मॉक टेस्ट में नहीं, एक्चुअली इट इज पीवाईक्यू। डेली थोड़ा पीवाईक्यू देख लीजिए एंड लैंग्वेज को समझ लीजिए, बट ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना इसमें, 1 घंटा सफिशिएंट है। फोकस ऑन एक्यूरेसी, ठीक है। जो भी अगर आप पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व कर रहे हो तो एक्यूरेसी पे फोकस कीजिए, नंबर क्वेश्चन मैटर नहीं करता। हर दिन, अभी लास्ट के जो 7 दिन है, थोड़ा आराम से रहिए। अभी बहुत जगह पे बारिश हो रही है, तो प्लीज मेक श्योर दैट बीमार नहीं पड़ना है। वन ऑफ माय फाइनेस्ट स्टूडेंट्स इज इल नाउ, एटलीस्ट कम से कम 7 से 8 घंटा सोना है, लाइट खाना है, जो भी बिरयानी वरियानी खाने हैं प्रीलिम्स के बाद खा लेना, अभी थोड़ा हल्का रखिए।
हेल्दी फूड खाइए, ये तो सबको पता है। लास्ट डे डी डे पे क्या करना है, पहली चीज तो सेंटर पे टाइम पे पहुंचिए। बहुत बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है, पढ़ाई में इतने व्यस्त रहते हैं, लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रहते हैं, नॉट गुड थिंग, ठीक है। सो लास्ट क्या करना है, डी डे पे पहली चीज तो टाइम पे पहुंचना है, क्योंकि बहुत पैनिक होगा। जो भी है आपका एडमिट कार्ड एंड ऑल दोस थिंग्स, जो स्टफ है, प्लीज मेक श्योर दैट उसको पहले ही रेडी करके रखिए। लास्ट मोमेंट रश होनी नहीं चाहिए। ट्रस्ट मी पीपल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ योर डे ऑफ योर लाइफ, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। इतना पूरा साल 2 साल की मेहनत है, फालतू चीजों के चलते उसको वेस्ट नहीं करने देना। नो सिंगल सिली मिस्टेक इन योर एग्जाम। एकदम ठंडे दिमाग से पेपर देख लेना। अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चन, बहुत बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो जस्ट गो एंड चेक आउट कि आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो वाले क्वेश्चंस कहां पे, उनको ढूंढिए, उनको पहले सॉल्व कीजिए, देन यू कैन कम बैक टू फर्स्ट क्वेश्चंस। प्लीज मेक श्योर दैट जब बबल फील करते हैं तो ये मत करना कि भाई पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा फिर बबल फील करूंगा, वेरी रॉन्ग स्ट्रेटजी। टाइम नहीं बचेगा तो क्या करोगे, ओके। सो जैसे 10-15 क्वेश्चन कर लिए, बबल फील कर दी। कोई भी एक सब्जेक्ट मान के चलिए, अभी 15 क्वेश्चन अपने हिस्ट्री के सॉल्व कीजिए, उसमें से जितने करेक्ट आपने सॉल्व किए उसको बबल फील कीजिए, ओके। नॉट इवन अ सिंगल सिली मिस्टेक, आई एम अगेन रिपीटिंग, ठीक है। दूसरी चीज, सीसैट को पूरी इग्नोर मत कीजिए, थोड़ा तो कीजिए। क्वालिफाइंग है बट फिर भी बहुत लोग फेल हो जाते हैं लास्ट टाइम, इसीलिए कट ऑफ तो नीचे जा रहा है। 22, 23, 24 का कट ऑफ इसीलिए नीचे है कि भाई जीएस तो बच्चों का आ रहा है लेकिन सीसैट फेल हो रहा है। सो क्वालिफाइंग है तो ज्यादा इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा तो कर लीजिए। प्रीलिम्स एलिमिनेट करना है। देखो 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, ए बी सी डी। आपको सही के पीछे मत भागिए, कौन सा गलत है उसको पहचान के पहले उसको एलिमिनेट कीजिए, विल गेट करेक्ट आंसर, ओके। ट्रिकी ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे, कुछ सिमिलर ऑप्शंस होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। डोंट डू दैट, ठंडे दिमाग से करना है। ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। खुद पे भरोसा रखिए कि भाई मैंने किया है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सिंसियरली पढ़ते हैं पूरे साल, 2 साल, 3 साल, बट भरोसा नहीं होता, इसीलिए एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। अगर आपने ढंग से पढ़ा है, सिंसियरली एफर्ट्स डाले हैं, व्हाई यू विल नॉट गेट क्लियर दिस एग्जाम। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा इस साल, खुद को क्वेश्चन कीजिए, क्यों नहीं कर पाऊंगा। मैंने पूरा साल पढ़ा है तो क्यों नहीं कर पाऊंगा मैं, ओके। सो प्लीज मेक श्योर दैट, आई एम गेटिंग इमोशनल नाउ, ठीक है। सो ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, ट्रस्ट योर मास्टर एंड ट्रस्ट योरसेल्फ, दैट इज द की, ओके। कंपेयर, किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, मुझे मतलब मैंने ये देखा है कि अगर आप सेंटर पे जाते हो, आपका कोई दोस्त है जिसने ऑलरेडी मेंस इंटरव्यू दिया था, या सीनियर है कोई ऐसा बहुत 30 मार्क खाने जो ऑलरेडी रैंक होल्डर है, तो आप उनको देख के आप डर जाते हो कि यार अभी यार ये फिर से आया है प्रीलिम देने के लिए, ठीक है, तो उसके सामने मैं क्या कर पाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। लाइक देयर आर मेनी पीपल कि पहले रैंक होल्डर थे, अगले साल प्रीलिम में नहीं निकली, ठीक है। यूपीएससी है भाई, ये बहुत खतरनाक चीज है। तो प्लीज मेक श्योर दैट ट्रस्ट योर प्रिपरेशन एंड ट्रस्ट योरसेल्फ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टेम्परामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं आपको एक सिंपल रूल बताता हूँ, 40% रोल जो है प्रीलिम्स क्लियर होने में नॉलेज प्लस इंफॉर्मेशन का है, 40% आपके टेम्परामेंट, कितना काम रह के आप क्वेश्चन उस दिन को आप कैसे हैंडल करते हो उसका है, एंड 20% बाकी सारे फैक्टर्स, आपका लक फैक्टर, आपके एफर्ट्स, ठीक है, आपकी पिछले जन्म की पुण्याई, ये सब चीजों का थोड़ा सा रोल रहता है, ठीक है। सो ये सब चीजें हैं, अच्छे से कीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। वन इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल दैट every single minute of your last day, 25 मई का जो दिन है, every single minute should be pre-planned। भाई मैं सुबह उठ के ये करूंगा, इतने बजे मैं सेंटर पहुंचूंगा, मेरा खाने का ऐसा ऐसा बंदोबस्त रहेगा, मैं यहाँ पे रहूंगा, मैं सेंटर के 2 घंटे के बीच में 2 घंटे है, तो प्लीज पर्सनली आई विल सजेस्ट स्टे एट सेंटर ओनली, नो नीड टू, अगर आपका होटल एकदम पास में तो जा सकते हो, अदरवाइज नो नीड कि कम्यूट ज्यादा मत कीजिए, थक जाओगे। और दोपहर का टाइम है, आप बोलोगे कि सर गाड़ी है मेरे पास, बट फिर भी यू विल गेट टायर्ड, नॉट नेसेसरी। इफ इट इज वेरी फार, वेरी नियर अबाई, यू कैन डू दैट। सो एवरी सिंगल, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जीएस 11:30 बजे खत्म होता है। बच्चे क्या करते हैं, बीच का जो गैप होते हैं पेपर डिस्कस करते हैं जीएस का, रेदर देन प्रिपेयरिंग फॉर सीसेट। वेरी रॉन्ग स्ट्रेटजी, बिगेस्ट ब्लंडर, डोंट डू दैट। 11:30 बजे पेपर जीएस का बैग में डाल दीजिए, खत्म कीजिए उसको, थोड़ा खाइए, थोड़ा हेल्दी, मतलब एप्पल्स एंड ऑल यू कैन कैरी दैट, देन ऑब्वियसली थोड़ा रेस्ट लीजिए, एंड सीसाइड को फॉर्मूलाज वगैरह रिवाइज कीजिए मैथ्स क्वांट के।
लास्ट टिप, थोड़ा सा खुद को हाइड्रेटेड रखिए एंड रेड बुल किंवा कॉफी दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हो, थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहिए क्योंकि बहुत सारे ट्रैप्स एंड एग्जॉस्टिव रहने वाला एग्जाम, सो बी रेडी फॉर इट. Okay, be ready for every single eventuality. That is the identity of a good bureaucrat. अगर आप ब्यूरोक्रेसी के लिए एग्जाम दे रहे हो, सो हमेशा लगना है कि हर एडमिनिस्ट्रेटर, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर वही होता है जो हर चीज के लिए तैयार होता है. कुछ अच्छा भी हो सकता है, लास्ट मोमेंट में कुछ एकदम बहुत खतरनाक कुछ ब्लंडर हो सकता है. बी रेडी फॉर दैट, बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट. पेपर डिफिकल्ट रहेगा, मैं पहले ही बता के रख रहा हूं. कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, कुछ इजी क्वेश्चंस होंगे. पेपर डिफिकल्टी लेवल, यूपीएससी का पेपर है, बट ऑलवेज रिमेंबर, इफ पेपर इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन. Okay, so thank you. That's it from my side. Do like, share and subscribe for this video, and all the best to all of you. Okay, so get, like, you have already given all of your efforts. This is the time to make these efforts count, and I wish you all the best to writing mains this year. Thank you so much.